آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 5 keys to a successful marriage. ایک کامیاب شادی جو ہے اس کے 5 پلرز ہیں، چابیاں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اس سے پہلے بھی ایک بار اس سرمن کو شیئر کیا تھا، کچھ چینجنگ ہے اس میں. اب میتھیو 19 اور اس کی 6 ورس ہے، متی رسول کی انجیل 19 باب اور 6 آیت. اس طرح لکھا ہے، بس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. Since they are no longer 2 but 1, let no one split apart what God has joined together. دعا کریں گے. قدوس خداوند، تیرے کلام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خاص کر آج کے دن کے لیے جب ہم تیرے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ایک ازدواجی زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. ہماری عقلوں کو روشن کرنا، جہاں کہیں رکاوٹیں ہیں، شیطانی تاثیروں کی وجہ سے میرجز ڈسٹروئے ہو رہی ہیں، یسوع نام سے تیرے پاک لہو کو لگاتے ہیں تاکہ محبت اور پیار کی روح سے ایک دوسرے کو بہتر جان کر ہم اپنی اس میرج لائف کو آگے لیتے جائیں اور اپنی زندگیوں سے تیرے نام کو عزت اور جلال دیں. سب کچھ مانگتے ہیں تیرے مقدس جلالی یسوع نام سے، آمین آمین. میرے عزیزو، آلموسٹ 3 لوگوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ میرج لائف پہ کبھی کوئی سرمن نہیں ہوا. میں ونس وائل کرتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد بہت سے لوگ اور ایڈ ہوتے جا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ اس کو پھر ریپوٹیشن کروں، دہراؤں ان باتوں کو جو کلام میں لکھی گئی ہیں شادی کے بارے میں. بس وہ 2 نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے آدمی جدا نہ کرے. کاؤنسلنگ سیشن میں یہ کپل پلرز ہیں جس کا ڈسکس ایز اے پاسٹر میں کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بیسک بنیادی ہیں. جب ان پر ہم عمل کر لیں تو شادی ایک دم خوبصورتی سے چلتی رہتی ہے. میننگ آف میرج جو ہے وہ ہے میننگ آف یونین اینڈ مائنڈ اینڈ سول. یہ ذہن اور جسم کا ملاپ جو ہے اس کو میرج کہتے ہیں. ایک اسکالر ہوئے ہیں سوسیالوجی کو، پال امینٹو کہتے ہیں کہ جو اب تک پچھلے کرونے کے بعد میرجز سٹیبل ہو گئی ہیں. کرونے سے پہلے تک اراؤنڈ 40% ڈیورسز ریٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں شادی کے، اور سیکنڈ میرج 67% ڈیورسز کے چانسز ہیں شادی میں. تھرڈ میرج جو کر لیتے ہیں 73% ڈیورسز کے چانسز ہیں. تو یہ جو شادی ہے، آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو پلرز ہیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ ہم کیسے اپنی شادی کو زیادہ خوشگوار بنا سکتے ہیں. Happy marriage is a union of 2 good forgivers. Forgive mean not bringing the old infractions up every time when you have a new fight. Good forgiver. 2. یہ میاں کی اور بیوی دونوں کی بات کی جا رہی ہے. کئی شخص یہ سوچتے ہیں ہاں یہ بس معافی مانگنی اس سے ہی چاہیے کیونکہ قصور اسی کا ہے. سم ٹائم جو کہہ رہا ہے قصور اسی کا ہے، شاید اسی کا قصور ہے. سو ٹو گڈ فارگیور جو ہیں، یہ ایک پلر ہے شادی کو قائم رکھنے کا. مینٹین یور انڈیویجولیٹی. گھر میں اپنی انڈیویجول چیزیں جو ہیں، چاہے بیوی کی ہیں چاہے خامن کی ہیں. خامن اگر باہر سے آیا ہے، شوز کہاں رکھنے ہیں، جیکٹ کہاں پہ جانی ہے، ٹوپی کہاں پہ رکھنی ہے،
ऐसे नहीं जहां आए वहां पे फेंक दी। तो वो औरत जो सारा दिन घर की सफाई का ख्याल रखनी है, जो सलापी औरत है, उसको कोई इशू नहीं है इससे, लेकिन जो क्लीन रहना चाहती है उसको प्रॉब्लम है इन चीजों से। तो हमने इस शादी को कायम रखने से पहले हमारी इंडिविजुअलिटी जो है, हमारी अपने साथ जिन चीजों का तल्लक है इंडिविजुअली, उन पे हमने गौर करना है। गिव ईच अदर स्पेस और ब्रेक, डू नॉट माइक्रोस्कोप एवरीथिंग। कई हस्बैंड या बीवी, उन्होंने दूरबीन लगाई हुई है हस्बैंड पे या वाइफ के ऊपर, क्या कर रहा है, किधर जा रहा है, फोन चेक करो, फलां करो, फलां करो, फलां करो। डोंट माइक्रोस्कोप एवरीथिंग अगर आप अपनी शादी को कामयाब करना चाहते हैं तो। कीप कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन, शेयर योर फीलिंग, डिसअपॉइंटमेंट्स, criticism, pain and expectation। अपने देसी कल्चर में जब हम नाराज होते हैं तो हम ऐसी कुंडी में मरोड़ देने, बोलना ही नहीं, ना वाइफ ने ना खामंद ने, बोलना नहीं एक दूसरे से। लेकिन जो ये स्टैंडर्ड है मैरिज का अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अपना कम्युनिकेशन जो आपकी लाइन है वो ओपन रहनी चाहिए, लेकिन उनको साथी को बताएं कि असल में आपको प्रॉब्लम क्या है, शादी कामयाब रहेगी। टॉक टू योर स्पाउस मोर काइंडली देन यू टॉक टू एनीवन एल्स। Too often we speak to most harshly to those closest to us, but very nicely to other। ऐसे ही है बाजी जी, तुसी इत्थे बैठो, तुसी इत्थे बैठो, अपनी बीवी दे कड़ी मुड़ी गल पैना है, ऐसे ही है। ये बाजी जी नूं बिठांदे ते वो बाजी जी अगर तुहाडी वाइफ हुंदी तो उहदे नाल भी तुसी इंज ही करना सी। सो अगर यही सिस्टम है तो व्हाई नॉट अपना जो साथी है उससे जेंटली, नाइसली, ग्रेशियसली बात करें, इंस्टेड ऑफ दूसरों से हम करते हैं, चाहे वो बाजी की बात है या भाई साहब की बात है। लेडीज भी ऐसे करती हैं, खामंद से बदतमीजी है लेकिन दूसरों से, आज भाई साहब आप यहाँ बैठे, पानी लेकर आए। अपने खामंद को पानी कभी पूछा या नहीं घर में? दोनों की बात मैं कर रहा हूं, शादी दोनों की है और दोनों की बात मैं कर रहा हूं। Do not say everything that on your mind. More marriages would survive if more things went unsaid. कई बार जो कुछ भी ज़हन में आना है वही कह देना है। कंट्रोल करके तो देखिए, अगर शादी को कामयाब करना चाहते हैं तो जो कुछ भी लड़ाई के दौरान माइंड में आया है दूसरे के खिलाफ, उसको कंट्रोल कीजिएगा। Do not fight. Do not forget to laugh. Most couples spend a majority of their time talking logistically. कुछ लोग हैं बस उन्होंने काम की बात करनी है वाइफ से या हस्बैंड से, पर कभी कोई हंसी मजाक नहीं, कभी कोई ये नहीं कहे चलो बाहर जाकर खाना खाते हैं, कभी ये पूछा हो आओ आपको जैकेट चाहिए, आपको कोई स्वेटर चाहिए, कोई पैंट चाहिए, कोई कपड़े चाहिए। वैसे इस बात में ये लेडीज मौका नहीं देती आदमियों को। वो मैं नरसिंगे ढूंढ रहा था, चूंकि साल पहले हमने बजाए शाह ज़करिया मेरी क्लाजेट में पड़े हुए हैं। वो हमने हमारे घर के ऊपर एक एटेक है तो उसमें हमने बड़ी बड़ी क्लाजेट बनाई हुई हैं 3। तो जब मैं वो ढूंढने गया तो मैं देखा सारी क्लाजेट को, तो मैंने कहा हमारे गांव में दुकान इतनी बड़ी नहीं थी जितने इस क्लाजेट में कपड़े हैं। लेकिन फिर भी साथी से पूछिए अगर आप शादी कामयाब करना चाहते हैं तो। If you haven't fully committed to your marriage, it won't succeed. मैरिज के साथ 100% कमिटमेंट जिसकी नहीं है उसकी शादी खराब होती है। कोई भी बात आपने करनी है, चाहे वाइफ है या हस्बैंड, फोकस करें कि मैरिज जो है ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। If you always test your spouse will always come up short because no one is perfect. कई टेस्ट पे लगे होते हैं, अब देखते हैं ये कैसे करती है या करता है। जब आप ये करेंगे तो हमेशा
آپ کا ساتھی فیل نکلے گا، کیونکہ خدا نے ہر انسان کو فیل ہی بنایا ہے. خدا نے بنایا انسان کو، کوئی بھی دنیا میں شخص نہیں سوائے یسوع مسیح کے، اس میں کوئی نہ کوئی خامی رکھی ہوئی ہے. ہزاروں خوبیاں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی ضرور خامی خدا نے ڈال دی ہے تاکہ وہ سمجھے کہ میں ہیومن ہوں، میں خدا نہیں ہوں. اور یہ ہر انسان میں ہے، انکلوڈنگ پاسٹرز. Your kids come second, not first. Marriage need to be number one. Your spouse was there before the kids and will be there after the kids moves out. کئی بار بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ماؤں کا دھیان بچوں میں زیادہ ہے، ہسبینڈ کو نگلیکٹ کرتی ہیں. کلام کے مطابق یہ ہے کہ یہ بچے پہلے نہیں تھے، بعد میں ہی آئے ہیں نا، انہوں نے بھی چلے جانا ہے بعد میں. وہی جو وائف آپ کے پاس یا ہسبینڈ پہلے تھا، بچوں کے بعد انہوں نے ہی آپ کے ساتھ رہنا ہے، تو وائی ناٹ بچے سیکنڈ پرائرٹی پہ ہیں. جس ماں نے بچے کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہے اور خامند کو سیکنڈ پہ، یا جس باپ نے بچے کو فرسٹ پرائرٹی پہ رکھا ہے اور وائف کو سیکنڈ پرائرٹی پہ، وہ شادیاں ناکام ہیں، ناکام ہوتی رہیں گی، چونکہ یہ خداوند کے کلام کے کلیے کے منافی ہے. Marriage is less about marrying a right person and more about become a right person, because successful marriage require loving your spouse when they don't deserve. کئی بار سوچتے ہیں مجھے بیوی نہیں اچھی ملی، مجھے خامند اچھا نہیں ملا. میں نے اس کی ریسرچ کی ہے، جس بیوی میں اور خامند میں زیادہ پرابلمز ہیں وہ زیادہ خدا کی مرضی سے شادی ہوئی ہے. وائی؟ چونکہ خدا نے اس عورت کا چناؤ کیا ہے اس مرد کے لیے، اور اس مرد کا چناؤ کیا ہے اس عورت کے لیے. چونکہ جتنا زیادہ تیز تراز آدمی ہے اتنی ہی خداوند نے اس کو سلو بیوی دی ہے، اور جتنی زیادہ تیز بیوی ہے اتنا ہی سلو، تاکہ بیلنس ہو سکے. ہم اس کو سلو کو تیز کرنا چاہتے ہیں یا تیز کو سلو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ اس شخص کی لائف کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو ایسی ہی بیوی چاہیے تھی. سو جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اور زوردار تالی اس بات کے لیے بجائیں کہ یہی بیوی، یہی خامند خدا نے میرے لیے مقرر کیا ہے، اس کو میں وفاداری سے آگے لے کر جاؤں گا. When you haven't an argument, listen to understand. Do not listen to find the loophole, so you can win. کئی بار یہ ہم جب لڑائی کے دوران سنا آگے سے کیا جواب دینا ہے پہلے مائنڈ میں تیار کر لیا. بیوی بھی ایسے کرتی ہے، خامند بھی ایسے کرتا ہے. لیکن آگے سنیے، marriage is either a win-win or lose-lose. You cannot win by beating someone else down. یہ شادی یا کامیاب ہے یا ناکام ہے، یہ فرق نہیں پڑتا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. شادی کو کامیاب بنانا جو ہے یہ فتح مندی ہے. رومیو 5:8 میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. شادی تو ہے کہ آپ کا جو ساتھی جس ایریے میں ویک ہے، کمزور ہے، آپ نے اس کو سہارا دینا ہے، آپ نے اس کی طاقت بننا ہے، چاہے خامند ہے چاہے بیوی ہے. اگین ہر شخص میں خامیاں بھی ہیں، خوبیاں بھی ہیں، اس لیے خدا نے وہ جوڑے سلیکٹ کیے ہیں. کمزور بیوی کا سہارا، طاقت اس کا خامند بہت سی جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اور کمزور خامند کا سہارا اس کی بیوی بہت جگہوں پہ ہو سکتی ہے. پہلا پوائنٹ جس پہ ہم آج غور کریں گے وہ ہے سکسیسفل میرج. جو کامیاب شادی ہے اس کے لیے جو پہلی چابی ہے، فرسٹ کی از گیو 100%. اگین شادی میں جس نے تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی رکھی ہے نا،
वो शादी नहीं कामयाब होगी, चाहे मर्द है चाहे औरत है। गिव 100%. Marriage is a covenant, not a contract. Marriage is a covenant, not a contract. Spiritual pledge है marriage जो है, जो contract है वो legal binding agreement है। Covenant is a promise, seal, आपने वादा किया उस पे पूरा उतरना है। Contract is a conditions, sign. For example, आप घर बाय करते हैं, बहुत से पेपरों पे आपसे साइन लिए जाते हैं, that's a contract. So contract में कंडीशन क्या है कि हम आपको घर देते हैं लेकिन 30 years के लिए आपको हर महीने इतना मॉर्गेज देना है, और जब 30 years पूरे हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। शादी जो है ये स्पिरिचुअल प्लेज है, ये सील हो जाता है खुदा के पाक रूह से, और जो कवेनेंट है ये लाइफ टाइम तक है, ये एंड नहीं होता। इसीलिए हम जब पास्टर के सामने दोनों मियां बीवी खड़े होकर प्रॉमिसेस करते हैं, वोज लेते हैं, वादे कौल इकरार करते हैं, बाद में क्यों उन चीजों को हम भूल जाते हैं। वहां पे अगर तंगी हो, अगर गरीबी हो, अगर कुछ भी हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये हस्बैंड और वाइफ की शिनाख्त होनी चाहिए। और यही प्रॉमिस किया खुदा के घर में, खुदा के लोगों के सामने। सो गिव 100%। अमाल 20 बाब 35 वर्ष में लिखा है, मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना, और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। You should remember the word of Lord Jesus Christ. It's more blessed to give than to receive. पहली बात, give 100%. Number 2, Wise 9:10 में लिखा है, जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर। Do well. स्लापी नहीं। मैंने जब फर्स्ट घर लिया तो पाजी साहब का बेटे हैं काका भाई, उसको कहते हैं शारून, तो चूंकि मैं इनके साथ ही रहता था उसको मैं ले गया। मैंने कहा जी पेंट करने हैं जी घर के दरवाजे, आप करो तो मैं दूसरा पेंट करता हूं। इन्ने भैड़े दरवाजे उन्हें पेंट किए, मैं उन्हें वापस छड़ गया। मैं तुसी भाईजान घर रहो, असी खुद ही पेंट कर लांगे। दिल नहीं है, क्योंकि मजबूरी थी। ये चाचू ने मैनू किथे ला दिता, असी तो पेंट किया नहीं कभी। गिव 100% शादी में। और जो काम तेरा हाथ करने को पाए उसे मकदूर भर कर, क्योंकि पाताल में जहां तू जाता है ना काम है, ना मंसूबा, ना इल्म, ना हिकमत, नो प्लानिंग, नो प्रोजेक्ट। कुलसियों 3:23 में लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। फर्स्ट की गिव 100%। किसको? यीशु मसीह ने क्या तालीम दी? मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना। और खुदावंद यीशु मसीह की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा देना लेने से मुबारक है। गिव 100%। ये आप कर दें, ये मैं कर देता हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये आप कर दें, ये मैं कर देता हूं। सक्सेसफुल मैरिज का जो पहला असूल हम देख रहे हैं उसमें यह है कि खुदावंद यीशु मसीह की ये बातें हैं, क्या? कमजोरों को संभालना। अगर आपका साथी जो है वो किसी बात में इतना स्मार्ट नहीं है, आपका साथी किसी बात में कमजोर है, तो मेरे अजीजों आपका हक बनता है, चाहे बीवी है चाहे खामद है, कि उसकी मदद करे, उसको सपोर्ट करे, ताकि आपका बांड जो है शादी का वो बना रहे। अगर एक शख्स ज्यादा खूबसूरत है, दूसरे को ताना देने की जरूरत नहीं, अपने साथी को अपने साथ खूबसूरत बनाए। अगर एक तालीम याफ्ता ज्यादा है, जो अनपढ़ है, उसको या थोड़ा पढ़ा लिखा है, सपोर्ट करे, क्योंकि आपकी सपोर्ट जो शादी को कामयाब बनाती है। चाहे कदो कामत की बात हो, जहानत की हो,
तनख्वाह की हो, इमोशनली कमजोर हो, सफाई इतनी ज्यादा नहीं करता, आप खुद करके उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर इवन आपका खामंद या बीवी दुनियादार है, आप उसको हेल्प कीजिएगा ताकि वो इससे निकल सके। क्योंकि मेरे अजीजों, जो खुदावंद यीशु मसीह की ये बातें हैं कि जो कमजोर है उसको मैंने और आपने जोरावर बनाना है। क्योंकि हवाला क्या पड़ा था? बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है, इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है आदमी जुदा ना करे। अगर वो है ही एक, तो फिर ये कैसे फर्क कि ये तूने करना है और ये मैंने करना है? ये कैसे फर्क आ गया? पास्टर हिजकियल सरोज कनाडा में कन्वेंशन पे थे। ये शख्स, मैं एलानिया कहता हूं, मेरे नजदीक, लोगों के नजदीक और भी बहुत हीरो होंगे, ऐसा शख्स जिसको खुदा ने बहुत सी बरकतों से, टैलेंट से मालामाल किया है। पढ़ा लिखा, उर्दू पे अबूर, इंग्लिश पे अबूर, सिंगिंग, पोएट्री, गीत लिखने, रागें बनानी, सारा कुछ इस शख्स को आता है। ये कनाडा में कन्वेंशन पे थे। स्टेज पे चढ़ने के लिए इनकी वाइफ, मुझे नहीं ख्याल कि वो उन्होंने हाई स्कूल भी किया है, उनके साथ ही स्टेज के ऊपर शूज उतार कर गए। पास्टर हिजकियल ने अपनी बीवी के खुद शूज पहने, पकड़े हैं और स्टेज से उतरे उसको पहना रहे हैं। और ये बात कैमरे में कैप्चर हुई और उन्होंने वहां से, मुझे एक पास्टर है, उन्होंने कॉल की कि वाह यार, ये खादम जो पूरी दुनिया में जाता है, वाइफ की इस कदर इस शख्स ने रिस्पेक्ट पब्लिकली शो की है। हम तो कहते हैं खुद ही डाल ले। मुझे प्रॉब्लम थी, ये औरतों को कोट क्यों पहनाते हैं, ये गाड़ियों के दरवाजे क्यों पकड़ते हैं, ये खुद नहीं खोल सकते। खुद गर्जी थी, कलाम अंदर से नहीं गुजरा था। नहीं हम हेल्प करना चाहते, क्योंकि हम उसमें से, शख्स में से वो निकालना चाहते हैं जो उसमें खुदा ने डाला ही नहीं। इसलिए आपको उसका साथी बनाया है। अगर आपको समझ है उस बात की, तो आपने उस सिलसिले में उसकी मदद करनी है, कमजोरों को संभालना, और जो भी काम करो जी से कि खुदावंद के लिए करते हो। जरूरी नहीं कि ये सरमनी ही खुदा का काम है, प्रस्तश ही खुदा का काम है, दुआ ही खुदा का काम है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर दिल से आप अपनी वाइफ को या हस्बैंड की, जहां पर वो कमजोर है, आप उसका जोर बनते हैं, तो ये खुदावंद के नाम को जलाल देता है। जो काम करो ये कि खुदावंद के लिए करते हो, और जो काम तेरा हाथ करने को पाए उससे मकदूर भरकर। बात कर रहे हैं फर्स्ट की कि अपने साथी के लिए या शादी में 100% देना अपने आप को, अपने इमोशंस, अपनी थॉट, अपनी इनकम, अपने सोर्सेस। आप कह लें जब एक ही हो गए हैं तो फिर दो की बात क्या है? जहां दो की बात है वो एक हुआ ही नहीं अभी। तो जो एक हुआ ही नहीं अभी, तो फ्यूचर में वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने ये बातें कही, गिव 100%, दिस इज फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, और डोंट टेक एडवांटेज। अगर आपका खामंद या आपकी बीवी आपके भी काम करता जाता है तो उसको एडवांटेज ना लें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि आपका 100% क्या है। ये नहीं एक शख्स ने तो 100% शुरू कर लिया तो दूसरा आराम नाल फेसबुक वेखदा रहे। दोनों ने 100% देना है। फिलिपियों में लिखा है, हर एक अपने ही हवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरे के हवाल पर भी नजर करे। दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर स्पाउस, अपने साथी की इज्जत करना। रोमियो 12:10 में लिखा है, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। टेक डिलाइट इन ऑनरिंग ईच अदर। डिलाइट का मतलब होता है कि इस
कदर आप रिस्पेक्ट करें अपने साथी की, वो वैसे खुशी के साथ आपके लिए सब कुछ करता फिरे। लेकिन हम जाने नहीं देते यहां तक रिलेशनशिप को, क्योंकि हम उससे पहले ही देखना चाहते हैं कि ये कितने को पानी में है, बीवी या खामद। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, टेक डिलाइट। फिलिपियों 2 में लिखा है तफरके और बेजा फखर। तफरके सेल्फिशनेस और बेजा फखर इंप्रेस अदर, दूजिया नु खाना आपके देखो जी है। इसके बारे में क्या लिखा है? तफरके और बेजा फखर के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से हम्बल होकर, छोटे होकर एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। थिंकिंग ऑफ अदर एज बेटर देन योरसेल्फ। कितना हम अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। मुंह भी धोना है, ब्रश भी करना है, बाल बनाने हैं, शावर लेना है, कपड़े इस्त्री करो, ये करना है, वो करना है। यही है एक्चुअली जो शादी है। अगर एक हैं आप, तो फिर आपने एक दूसरे पे, जहां पर वो आपका साथी कमजोर है, आपने उसका वहां पे जोर बनना है। पहला पतरस 3:6-7 आयत में लिखा है, चुनांचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, ऐशोरो तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अगेन, जिन्हें मर्जी घंटे दुआ करो। अगर आप हस्बैंड से नाराज होकर दुआओं में बैठे हुए हैं, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यही कुलिया खामद के लिए है। बीवी से नाराज होकर ये प्रीचिंग करनी, ये कलाम सुनाना, ये दुआएं करनी रॉन्ग है। लिखा है ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। पहला स्टॉप साइन जेड़ा तुहाडा वो वाइफ है। या शादी नहीं सी करनी तो हुण जे शादी कीती है ते मेरे अजीजो जेड़ा ऑनलाइन भी ते सुन रहा, सीट बेल्ट ला के पाओ। अगेन, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। ट्रीट योर वाइफ विद अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे जी ट्रीट करें? ये वही अंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे लोग कुछ कपल्स के लिए कहते हैं इनकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। वो एक दूसरे को समझते हैं कि मेरा साथी किस एरिया में कमजोर है और दूसरा साथी उसका जोर बन जाता है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट योर स्पाउस। जो दूसरा पॉइंट चाबी हम देख रहे हैं, अपने साथी की इज्जत करना। पहली बात क्या देखी? इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर जानो, बेहतर समझो। लेकिन होता क्या है कि जिस कल्चर में से हम आए हैं, वहां पे जो इंसान है, आदमी है, वो बहुत ही ऊंचा है। लिसन, औरत मर्द की पसली से बनाई गई, ना सर से कि आदमी पर हुकूमत करे और ना पांव से कि आदमी उस पर हुकूमत करे, बल्कि पसली से उसके बराबर, ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ दे, दिल के पास, ताकि उसको प्यार दे। सो ये जो कहानियां हम सुनते हैं बहुत से मज़हब में, औरत का क्या किरदार है क्रिश्चियनिटी में, किरदार जो औरत का है वो इक्वल है रिस्पेक्ट का। जितनी मर्द की रिस्पेक्ट है उतनी औरत की। हमारे बाप दादा ने अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे जहन में डाला हुआ है कि औरत छोटी है, औरत कमतर है, मैं शादी की बात कर रहा हूं उसमें, तो ये रॉन्ग अनपढ़ कॉन्सेप्ट था। कलाम इसकी कोई इजाजत नहीं देता। कलाम के मुताबिक औरत और मर्द एक जैसे हैं। जब एक हो गए हैं,
कैसे मैं कह सकता हूं अगर मैं एक हूं तो मेरा सर ठीक नहीं, या मेरी टांगें ठीक नहीं, या मेरा पेट ठीक नहीं। जब हम एक हैं तो फिर मेरे अजीजों हम एक जैसी रिस्पेक्ट के हकदार हैं। और लिखा है क्या जी, सारा खुदावंद कहती थी अपने खामद को, इंग्लिश में है इसका, सारा ओबेड हर हस्बैंड। ओबे करना। काफी साल हो गए हैं, एक इंडियन फैमिली हमारे चर्च में आती थी, भाई साहब की डेथ हो गई है, तो मैं नया मुझे कुकिंग नहीं आती, तो जब इबादत के बाद बैठे ना थे, वो कहते हैं पास्टर मैनुअल से, पादी साहब मैं अपनी बीवी ने क्या मनु ना आलू मटर बड़े पसंद ने, तो उन्हें क्या मैं अज भी नहीं बनाने, कल भी नहीं बनाने, परसों भी नहीं बनाने, 3 दिन बाद बनावांगी। आप ये देखें रिलेशनशिप कितनी दूर जा रही। मैंने उनको कहा कि भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि आलू मटर कैसे बनाने हैं। आप पानी डालें, जब पानी गर्म हो जाएगा उसमें थोड़े से आलू डालें, बाद में मटर के उसको हिलाते रहें तो आलू मटर बन जाए। ये कौन सा मुश्किल काम है? ये है हमारी जो रुकावटें जिसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते एक दूसरे के वर्ड्स की। और सारा ओबेड, ये नहीं कि खामद आ गए थे डर डर के छुपन डई सी, सारा ओबेड खामद का हुक्म मानती थी। हम खामद से कई बार एक्सपेक्ट करते हैं ये करे हमारे लिए, लेकिन हम खुद उसमें फेल होते हैं। सारा अपने खामद की ओबेड हुक्म मानती थी। उर्दू में लिखा उसको खुदावंद कहती थी। यूश कल्चर में जब मियां बीवी की शादी हो जाती है तो उनका एक कॉन्सेप्ट है जो सेरेमनी का है, और वो ये है कि जब शादी होकर बीवी घर में आ जाती है तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं समझते कि ये पढ़ी कितनी है, इसका खानदान कितना अमीर है, इसका रंग कैसा है, कैसा भी। वो ये समझते हैं कि एक ह्यूमन, इसका थोड़ा सा, एक ह्यूमन जो है वो हमारे घर में एक स्पिरिट आई है, और इस स्पिरिट की रिस्पेक्ट करना हम खानदान का फर्ज है। और लिखा है कि वो शख्स जो है जिसके घर में उसकी बीवी आ जाती है वो अपनी इज्जत से ज्यादा इज्जत अपनी बीवी की करते हैं। आप जरा चेक करें कि ये जो ज्यूश कल्चर है उसमें डिवोर्स रेट क्या है। डिवोर्स रेट इसलिए नहीं है कि जैसी भी बीवी है, जैसा भी खामद है, उसको कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है। उसमें जो कमियां हैं, जो उसमें कमजोरियां हैं, आपने उसका जोर बनकर उनको निकालना है, तब आप शादी को आगे ले जा सकेंगे। जो शादी है उनका तस्वर है, ये ज़बूर हम गाते हैं, इज्जत और दौलत उस घर में आ जाती है जब जो आपके घर में बीवी आई है, चूंकि आप उसको लेकर आ गए, लेकिन अगर आप उनके घर में चले गए हैं तो आप भी इस तरह रहें जिस तरह बीवी आपके घर में आकर रहती है। आप भी अपने ससुराल में गुजारा कर सकते हैं अगर उनकी कोई ऐसी मजबूरी है। तो इज्जत और दौलत, और वैसे भी जहां मोहब्बत आ जाती है, जहां पाकीज़गी आ जाती है, खुदा का रूह आ जाता है वहां पे। और जहां खुदा का रूह जिस घर में आना जाना शुरू कर दे, वहां पर बरकत के अंबार लगते हैं, ढेर लगते हैं। अगर कोई मैरिज डिस्ट्रॉय होती है, अगर हमारे फाइनेंस ड्रॉप होते हैं, तो उसकी रीजन लड़ाई और झगड़ा है। और कलाम में लिखा है जहां लड़ाई है, जहां झगड़ा है, वहां हुकूमतें तबाह हो जाती हैं, वहां खानदान तबाह हो जाते हैं, वहां दोस्त
तबाह हो जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो है ये मेरे और आपके लिए, इसीलिए जो क्राइस्ट है, मसीहा है, वो मोहब्बत का पैगाम मेरे और आपके लिए लेकर आया कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ये मोहब्बत मुझे और आपको हमेशा खुश और शाद रख सकती है। थर्ड की, सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। और इत्मीनान या किसी मिसाली नमूना बनना। कोई आपकी मिसाल दे कि ये कपल ऐसा है। अगर आपकी कोई मिसाल नहीं दे रहा तो आपकी बैक हिस्ट्री करप्ट है। अगर आपकी कोई मिसाल नहीं दे रहा तो आपकी बैक हिस्ट्री करप्ट है। फॉरगेट अबाउट दैट कि आप बहुत बड़े हीरो बन जाएंगे। जो शख्स कामयाब हुआ है उसने कुर्बानियां की हैं। और यहां पर सेट अ पॉजिटिव एग्जाम्पल। जब मैं और आप पॉजिटिव एग्जाम्पल सेट करेंगे, बहुत से चैलेंजेस से हमें गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर एक मिसाली शख्स बन सकते हैं। चूंकि हर शख्स लिखा है जो धरती पर है खताकार है, गलती करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, पर चूंकि हर इंसान गलती करता है, हमने ये देखना है कि कौन कौन सी गलती को हम रोक सकते हैं। तब आप एक मिसाली वाइफ और मिसाली खामद या मिसाली कपल बन सकते हैं। फॉर लेडीज, तीतस 2 बाब 5, 6, 7, 8 में लिखा है, और मुत्तकी टू लिव वाइजली। औरत के लिए है लिव वाइजली। मुझे पता है कि कुछ औरतें कई बार इस तरह की बात करती हैं। लिव वाइजली। और पाक दामन, प्योर, और घर का कारोबार, वर्क इन होम करने वाली और मेहरबान, टू डू गुड, जो कुछ भी आपसे हो सकता है, और अपने अपने शोहर के ताबे रहें, सबमिसिव टू देयर हस्बैंड, ताकि खुदावंद का कलाम बदनाम ना हो। अब अगर एक वाइफ खामद की रिस्पेक्ट नहीं करती या उसके साथ प्रॉपरली उस दौड़ में नहीं दौड़ रही, खुदावंद के कलाम ने क्या बदनाम होना है? सुनिए जी कैसे होना है। द वर्ड ऑफ गॉड मे नॉट रिवील्ड। यहां पे खुदावंद के कलाम ने बदनाम होना क्या हुआ? क्या है? शादी तो हुई है, प्रॉस्पेरिटी कहां है? कामयाबी कहां है? खुशहाली कहां है? मोहब्बत कहां है? ताकि खुदावंद का कलाम बदनाम ना हो औरतों के लिए। लिव वाइजली। कुछ बातों को आप समझें कि ये बात जो है ये मेरे इस खानदान के लिए ठीक नहीं है। चूंकि रवाज के मुताबिक हम लेडीज को, फीमेल को, बीवी को अपने घर में लाते हैं, तो वहां पे आपने देखना है कि आप किस तरह इस खानदान में अपना नाम पैदा करते हैं। एक बार हमारी बड़ी बहन है, क्रिसमस पे हम उनके घर में केक लेके जाते हैं, बहनों के घर में क्रिसमस देने। तो हम कहीं और बिजी थे, मैंने शायद कहा चल वैसे ही पैसे दे देंगे, केक को क्या करना है? कहती है नहीं नहीं नहीं, तुसी इधर नु गड्डी करो, तुसी केक तो बगैर। बहन मेरी है नहीं, हम जब तक वो ना हो दिन दिहाड़े हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेट होते हैं और लेट होते हैं तो हो जाए। लिव वाइजली। अगर खामद कह रहा है कि शॉर्टकट, लेकिन अब आपको अगर आप ऐसे बीवी समझ है, आप स्टेप लीजिएगा। असा उतो ही गड्डी इधर नु पड़ता है तो बेल्स मार्केट है। लिव वाइजली। चैलेंज से कहता हूं, शाहजहा को इधर खड़ा कर दो और मुझे इधर। मेरे अपने घर के फर्द 75% उसके साथ खड़े होंगे। लिव वाइजली। क्योंकि जो औरत ना सिर्फ सेल्फिश है कि मेरे लिए क्या है, मेरे लिए क्या है, फॉरगेट अबाउट दैट, जो कंप्लेन में रहता है शख्स, चाहे मर्द है या औरत है, उसको प्रॉब्लम है क्योंकि वो खुदा की शुक्रगुजारी नहीं कर रहा।
लिव वाइजली, रिश्तों को संभालना, लिव वाइजली, ये औरत का काम है। मर्द दोनों औरत को इजीली हैंडल कर लेता है, समटाइम औरतों को ये मुश्किल होता है कि अपने भाइयों को, बहन भाइयों को, माँ बाप को, रिश्तों को, उनके लिए मसला नहीं है, लेकिन खामद के माँ बाप से मसला है, खामद के बहन भाइयों से मसला है। आई नो दैट कि आपका ब्लड है, लिव वाइजली। अगर आप अपनी शादी को कम, कुछ नहीं होता, कुछ लोग उसी पे बिलीव करते हैं जो है। यू आर रॉन्ग, आप इसी में रहेंगे। फॉरगेट अबाउट एवरी सिंगल थिंग। नया दिन आएगा, आपके लिए नया सूरज निकलेगा, नई खुशियां, नई फेवर, नए जोश बलबले, नई कामयाबियां लेकर आएगा। व्हाई यू ट्रस्ट व्हाट यू हैव टुडे, क्योंकि कलाम कहता है कि लिव वाइजली। और घर का कारोबार, बर्तन भी उठे पे ने। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेडीज राइट नाउ। आप ही जनाब रिश्तेदार ना घंटे घंटे गल्लां चलन रही। वाई? अपने घर के काम करें ना, घंटा ना करें, बात तो 3 मिनट में भी हो जाती है, 10 मिनट कर लें। क्या बातें कर रहे हैं आप? मेरा ख्याल है मुझे सबसे ज्यादा कॉलें आती हैं, लेकिन कोई कॉल भी 3 से 4 मिनट से ज्यादा नहीं, अनलेस किसी जगह पे किसी को चाहिए कि थोड़ी लंबी बात की जाए, होती है। लेकिन मेजॉरिटी 2 से 3 मिनट में अब खत्म बात। जो ज्यादा लंबी बातें दूसरों से करते हैं, वो गलत बातें करते हैं, वो चुगलियां करते हैं, वो नुकसान करते हैं अपना भी दूसरों का। अपनी कॉल को शॉर्ट कीजिएगा आज। लिव वाइजली। घर का कारोबार करने वाली मेहरबान, टू डू गुड। कुकिंग करनी है ना, दिल लगा कर करे, अगला बंदा वाकई आपकी तारीफ करे। जिनको मैंने सिखाया ना कि आलू के मटर के पकाने ने, उन्होंने 2-3 मिनट से पक जाने, किसी ने नहीं खाने वो। ना मैंने उनको मिर्चें बताई हैं, ना मुझे खुद पता है कि मिर्च कब डालनी है, नमक कब डालना। डू गुड। और अपने अपने शोर के सबमिसिव टू योर हस्बैंड्स, हस्बैंड को साथ लेकर चलिएगा। अगर आप ऐसे औरत, स्ट्रांग औरत दुनिया में बनना चाहते हैं, एग्जाम्पलरी लाइफ, आप मिसाली बीवी बनना चाहते हैं, खामद को साथ लेकर चलिएगा। जो औरतें खुद आगे बढ़ जाती हैं और खामद की परवाह नहीं करती या उसको नीचा सोचती हैं, वो कभी भी नहीं, वो शायद उसकी थोड़ी बहुत ही बात होगी, लेकिन जो ही वो मरेगी सब कुछ चला जाएगा। लेकिन अगर दोनों मियाँ बीवी किसी बात में मिसाली हैं, तो मेरे अजीजों ये बहुत ही बड़ी बाबरकत है, और दोनों में इस पे काम करना है। फॉर मैन, मर्दों के लिए, जवान आदमियों को भी इसी तरह नसीहत कर कि मुत्तकी बने, लिव वाइजली। आपको अकेली लिव वाइजली के लिए क्या करना पड़ता है? यू हैव टू टेक लिटिल बिट टाइम। सोचें थोड़ा, अगर इतने नहीं स्मार्ट, थोड़ा सा टाइम ले लें कि ये बात कैसे करनी है। मर्दों के लिए सब बातों में अपने आप को नेक कामों का नमूना बना। ये नेक काम, एग्जाम्पल टू डूइंग गुड वर्क। जेड़ा वो 12 बजे काम तो घर आ जाता ना, वो मिसाली नहीं बन सकता। वो शायद अपने अंदर मिसाली बनया कि चलो यार बारिश शुरू हो गई है, चलने घर है, जाके पकौड़े शकोड़े कट के अपना जनाब बच्चे ना खाने। यू हैव टू वर्क हार्ड। ये एग्जाम्पल बनने के लिए बहुत से साल लगते हैं, और 1 सेकंड में आप इसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आई एम टेलिंग एवरीबॉडी नाउ, जब शुरू में मैंने प्रीचिंग शुरू की, हम सीडी पे रिकॉर्डिंग करते थे। पास्टर हिजकियल सरोज को मैं जब आते थे, मैंने कहा पास्टर जरा सुनियो तुम कितों मैं सही करा, आई वांट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, कैसे मैं मैसेज को ठीक करूं। उन्होंने कई बार सुन के, यारा तू नवियां गल्लां कितों लेना, असीं तो पूरी किताब पढ़ के कई बार एक दो तू तो एक सरमन च नहीं आता दिया ने। लुक लाइक
फ्यूचर में खुदा ने आपको लोगों के लिए बुलाया है, पर एक बात का ख्याल रखना, अपने किरदार की तरफ उंगली ना आने देना। That was his advice to me। और मैं उस वक्त से I'm trying my 110% कि मैं अपने किरदार की तरफ उंगली ना आने दूं। और जितनी जवान बेटियां बहनें यहाँ बैठी हैं या कम्युनिटी में जानती हैं, I hug them, I even kiss them, but they know that ये हग और किस भाइयों जैसा है, बाप जैसा है, इसमें कुछ और मिलावट नहीं है। Live wisely, मर्दों के लिए। जितना साइड पे अपना चीटिंग करके गर्लफ्रेंड बनाइया ने, फॉरगेट अबाउट आपकी मैरिज कहीं जाएगी। Live wisely, नेक कामों का नमूना बना। What you really doing, नेक काम जो है, अच्छे काम जो है, कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए, आप में क्या कैपेसिटी पाई जाती है? आप एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, करना कुछ नहीं चाहते। एग्जाम्पल बनने के लिए बहुत सी सीढ़ियों में से चढ़ना पड़ेगा आपको। तेरी तालीम में सफाई, इंटेग्रिटी और संजीदगी हो, और ऐसी सेहत कलामी पाई जाए जो मलामत के लायक ना हो। खुद गलत काम करके दूसरों को नसीहत करना। एक कपल, उनकी प्रॉब्लम हो गई तो पास्टर साहब कह रहे हैं जी ये बंदा जो है ना ये बहुत अच्छा है काउंसलिंग के लिए, लेकिन उसकी अपनी डिवोर्स हुई है। अच्छा क्या है? Because he is tall and beautiful? Because he has money and so many houses? No, ये नहीं अच्छा। आपकी नजर में अच्छा है, लेकिन अगर जिसको अपना घर संभालना नहीं आता, उसने क्या एडवाइस देनी है दूसरों को कि इस तरह करो? अपना घर टूटा है और वो काउंसलिंग करे, नो, कलाम के मुताबिक नहीं, उसे अपना ही संभालना नहीं काउंसिल आया, उसने दूसरे के काउंसलिंग को कैसे प्रोटेक्ट करना है या बताना है कि कैसे करना चाहिए। नो गुड। आप पहले जज करिए, देखिएगा लोगों को किस तरह की उनकी लाइफ है, बिफोर यू ट्रस्ट ऑन देम। तालीम में सफाई, इंटेग्रिटी, खरापन पाया जाना चाहिए। और ऐसी सेहत कलामी क्या है? टीच द ट्रूथ, टीच द ट्रूथ। ये ट्रूथ है ना कलाम, इसको मैं सिखाऊं कि अपने मां और बाप की इज्जत कर, लेकिन अपने मां बाप को मैंने खुद घर से निकाला हो और यहां प्रीच कर रहा हूं, हाँ जी कलाम में लिखा है मां बाप की इज्जत कर। नो गुड। सेहत कलामी क्या है? जो कुछ टीच कर रहे हैं आपकी लाइफ में से नजर आना चाहिए। इफ्सियों 5:22 में लिखा है, बीवियों अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की, और शोहरों के लिए अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। लेवल देखिए मोहब्बत का, बीवियों के लिए भी, खामदों के लिए भी। और किया क्या है? मौत के हवाले किया है। औरतों के लिए वाइसली, मर्दों के लिए वाइसली, और इसके साथ मुत्तकी हो, नेक कामों में नमूना बन। आपकी मिसाल आपकी बीवी दे, ना कि दूसरे लोग। उसकी तालीम में सच्चाई पाई जाए। और लेवल क्या है? इस कदर बीवियों सबमिट रहो। पूछ लिया करो बंदे को क्या करना, वैसे कुछ नहीं होता। अगर बंदा ज्यादती करता है, कॉल मी और कॉल 911, दोनों पहुंचेंगे। इन्वॉल्व करें अपने खामन को। बीवियां रिस्पेक्ट और इज्जत पाएंगी जो खुद फैसले कर लेती हैं। जब वो फैसले रॉन्ग निकलते हैं, खामन साथ नहीं खड़ा होता। खामन उस वक्त खड़ा होगा जब दोनों का डिसीजन होगा, नॉट वन साइडेड। और लेवल
اسی طرح جیسے خاوند کے لیے، جیسے یسوع مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے، یسوع مسیح کی محبت جو کلیسیا کے لیے، ہم چھوٹی سی بات میں روٹ کر پوز کر دیا، ریلیشن شپ کو بولنا چلنا بند کر دیا۔ یسوع مسیح نے کلیسیا کے لیے کیا منہ پہ نہیں تھکوایا؟ یسوع مسیح کی کیا داڑھی نہیں نوچی گئی؟ یسوع مسیح کو کیا کوڑے نہیں لگے؟ یسوع مسیح کیل ٹھونکے گئے ہیں، پسلی میں نیزہ مارا گیا ہے، اور نہ صرف یہ، اپنا سارا خون یسوع مسیح کا نکل کر اس کا بدن میرے عزیزو بلیک ہو گیا ہے، اس کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا، اس کی شکل پوری بنی نوع انسان میں جو انسان ہے ان سے زیادہ بگڑ گئی ہے، کیونکہ وہ اپنی دلہن کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں اور آپ اگر کامیاب شادی چاہتے ہیں تو یسوع مسیح نے نہ صرف یہ سہا ہے، نہ دکھ سہے ہیں، نہ تکلیفیں، بلکہ اپنے آپ کو موت کے حوالے مر گیا ہے اپنی دلہن کے لیے، تاکہ میری دلہن جو ہے ایک دن میرے ساتھ فردوس میں رہے۔ کیا کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہ لیول دیا ہے، لیکن کلیسیا کو سبمسیو ہونا ضروری ہے، بیوی کو سبمسیو ہونا ضروری ہے کہ آپ کا دلہا آپ کے لیے جان قربان کر دے۔ اگر دلہا نکل رہا ہے تو کہیں نہ کہیں دلہن کمپرومائز نہیں کر رہی۔ Your child will follow your example۔ ہم پازیٹیو ایگزامپل کی بات کر رہے ہیں، مثالی نمونہ کیسے ہم بن سکتے ہیں۔ اگین غور سے سنیے گا، Your child will follow your example, not your advice۔ آپ جس طرح میاں بیوی رہتے ہیں، بچوں نے ان کو فالو کرنا ہے، آپ کی نصیحتیں نہیں سنیں گے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے آپ کی ایڈوائز۔ نہیں بیٹا، یہ بیٹی یہ اس طرح کر۔ آپ دونوں نے کیسی زندگی گزاری ہے؟ اگر اس وقت آپ نے نہیں سوچا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دونوں بچوں کے ٹیچر ہیں۔ Your children will follow your example۔ آپ نے کیسے زندگی میاں کے ساتھ بیوی کے ساتھ گزاری ہے وہ دیکھیں گے۔ آپ کی مثالیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیں گے بچے، کرنا پھر انہوں نے وہی ہے جو تونوں کر دیا ویکھیا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو be careful how you are living in the house، گھر میں کیسے کر رہتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی چابی جو ہے سیکریفائس۔ لو از اے نیم آف سیکریفائس۔ محبت قربانی کا نام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ بس جیسے جی ایدہ حق کہتے ہیں، ایدہ حق میرا حق ہے، شادی میں کوئی حق شک نہیں۔ حق صرف تب ہوتے ہیں جب آپ دو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جب ایک ہو گئے ہیں پھر حق کون سا رہا ہے جی؟ پھر جو آپ سے بیسٹ ہو سکتا ہے آپ کریں، جو آپ کی بیوی سے بیسٹ ہو سکتا ہے وہ کریں۔ حق شک نہیں ہے، اور جو حقوں پہ چلتے ہیں ان کی ٹربل رہتی ہے ہر روز ان کے گھروں میں۔ سیکریفائس، چوتھی چابی۔ میکنگ compromises for the sake of relationship۔ آپ نے جو رشتہ ہوا ہے نا اس کو قائم رکھنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ Sacrifice can seem one-sided at a time, but it benefits both partners۔ کئی بار لگتا ہے شاید میں ہی پس رہا ہوں، مجھے ہی سارا کچھ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ کی شادی چل رہی ہے۔ جب بھی آپ اس کو ڈیوائیڈڈ کرنا شروع کر دیں گے ٹوٹ جائے گی۔ پہلا کرنتھیوں یہ محبت کا خط ہے۔ انگلش بائبل میں 551 ٹائم محبت کا نام آیا ہے، اور محبت قربانی ہے۔ محبت صابر ہے اور مہربان۔ سننا ذرا، اگر محبت ہے تو پھر صبر بھی کرنا ہے، پیشنس۔ محبت حسد نہیں کرتی،
जेलसी नहीं है इसमें। आप किसी बात में कामयाब हुए हैं, वो खुश होंगे, शुक्र करेंगे। लेकिन अगर जल रहे हैं तो इस मीन मोहब्बत वहां पे नहीं है। शेखी नहीं मारती, बूस्टफुल, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਆ ਸੀ। ਬਟ ਯੂ ਆਰ, अगर इसमें से कोई शख्स बाहर है, that person is nothing, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाने वाला है। मटेरियलिज्म, घर बार, बैंक बैलेंसेस, सोना चांदी, सब कुछ खत्म हो जाना है। शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, रूड नहीं है, नाजेबा काम नहीं करती। लव डज नॉट गो आउट ऑफ ट्रैक। नाजेबा काम की ने वो जो काम नहीं करने चाहिए। लव डज नॉट गो आउट ऑफ ट्रैक। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। लव डजंट डिमांड इट्स ओन वे। मेरे वालिद साहब 105 साल के हो गए हैं, तो जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारे घर में भैंसें थी, काउस थी, गाय थी। उनकी एक आदत थी, उनको सुबह सुबह ताजा मक्खन चाहिए। अगर किसी वजह से मक्खन नहीं है तो बाबे हरी सारा दिन ही गुस्से दे विच ने। लव डज नॉट डिमांड इट्स ओन वे, कि जिस तरह मैं सोचता हूं या सोचती हूं वैसे ही हो तो फिर शादी चल सकती है, वरना कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन ये तो कुर्बानी है मोहब्बत की। तुहानू किने क्या सी शादी करो? पॉल ते आंदा कल्याण रहना ही सही है। अगर शादी की है तो फिर सैक्रिफाइस करना सीखे। अपनी बेहतरी नहीं चाहती। लव डज नॉट डिमांड इट्स ओन वे। जुन जलाती नहीं। लव इज नॉट इरिटेबल। इहदे च चिड़चिड़ापन नहीं। अगर मोहब्बत है तो फिर तो खुशी से, जिनसे प्यार है, आप कितनी घंटों घंटी बैठे रहे हैं तो बातें करते रहते हैं। लेकिन जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे 2 सेकंड 4 में जो ही काम हो आप जाने की करते हैं। वजह माइंड में आपने उस पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। झुंझुलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती। बदगुमानी क्या होती है? इट्स कीप नो रिकॉर्ड ऑफ बीइंग रॉन्ग। जैसे पहले हमने पिलर देखे थे, इट्स कीप नो रिकॉर्ड ऑफ बीइंग रॉन्ग। बदगुमानी नहीं करती। ये पुराने खाते नहीं खोल लेंदे। थोड़ी सी लड़ाई हुई है, पुरानियां गल्लां ने भी किता सी, मां ने किता है, भैन ने किता है, भरा ने किता है, वो सारा रजिस्टर खोल लेना है। अगर मोहब्बत है तो वो टाइमली आप उसको खत्म कर सकते हैं। बात को लंबी बातें, ये पुराने रिकॉर्ड, बदगुमानी जिसे कहते हैं, पुराने रिकॉर्ड नहीं खोलती मोहब्बत। सब कुछ सह लेती है। नेवर गिव अप। सह का इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो कुछ मारते जाओ वो सहने जाएंगे। ठीक है जी, असली शादी दे विच ही रहना है। इसकी ट्रांसलेशन एक्चुअली फर्क है। फर्क ये है, लव नेवर गिव्स अप। कुछ भी हालात कैसे भी क्यों नहीं हो गए, लव नेवर गिव्स अप। चूंकि कुर्बानी करनी पड़ती है शादी में। सब कुछ यकीन करती है। नेवर लूज फेथ। नहीं जी इन्हें तो इंज कर लिया हुण बस खत्म हो गल। नो 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 नो। जो कोई आपको ये कह रहा है वो गलत एडवाइस दे रहा है। लव ऑलवेज हैव अ होप। सब बातों की बर्दाश्त करती है। लव एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टेंसेस। कैसा भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो, लव एंड्योर। और एंड्योर्स क्या होता है? कपड़े पहनाना। अगर आपके साथी से कोई ऐसी गलत बात हो गई है उसको कवर करना, इट्स वेरी हार्ड, लेकिन कलाम कहता है हो सकता है। इंड्योर। पहले पादरी साहब की बात कर रहे थे हिजकिय्याह की, तो यहां पे कन्वेंशन थी, तो वो सरमन दे रहे थे, तो वो जन्नत और दोज़ख की बात बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर पादरी मानुअल को इंचार्ज बनाया जाए जन्नत दोज़ख दा
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੰਨਤ ਸੀ ਵਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, कोई गल नहीं, जान दो इनू भी। लव इंड्योर्स। और इस तरह का बंदा हिस्ट्री और रिसर्च के मुताबिक 1000 के बाद एक मिलता है जो सबको प्यार करता है, जिसके लिए रॉन्ग भी ठीक है, क्योंकि वो इस तरह लेते हैं कि ही इज अ ह्यूमन। रोमियो 5 में लिखा, लेकिन खुदा अपनी खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। जो रिलेशनशिप है मेरे अजीजों, इसमें कुर्बानी करनी पड़ती है। और यहाँ पे एक ऑथर लियोनार्ड हुए हैं, उन्होंने एक रूल बनाया था, मैंने पहले भी ये चर्च में बताया था। उनका रूल ये था 4 मिनट रूल। और 4 मिनट रूल में आप जब सुबह लड़ाई हुई है ना, सुबह जब उठते हैं 4 मिनट के लिए कुछ नहीं कहना, चाहे बीवी है चाहे खामद है। और अगर लड़कर काम पे चले गए हैं तो वापस आए हैं तो 4 मिनट के लिए कोई बात नहीं करनी। 4 मिनट के बाद आपका ज़हन ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज के लिए, सॉफ्टनेस के लिए रेडी हो जाएगा। तो इस गोरे ने ये रिसर्च करके लिखा है कि 4 मिनट रूल अगर यूज किया जाए, जहां पे प्रॉब्लम्स है, मुश्किलात हैं, लड़ाई झगड़ा है, तो इस पे काबू पाया जा सकता है। लव इज ए सैक्रिफाइस। और यही सैक्रिफाइस यीशु मसीह ने किया। पहली क्या थी कि जो मोहब्बत है वो साबर है और मेहरबान, हसद नहीं करती, शेखी नहीं मारती। और ये सारी चीजें तो हम में भी पाई जाती थी। यीशु मसीह ने क्यों अपना खून पहले ही बहा दिया था? उसको तो ये चाहिए था कि ये शख्स, ये औरत, ये मर्द जब तक अपने रास्तों को ठीक नहीं कर लेता, जब तक ये तौबा नहीं करता, जब तक ये बपतिस्मा नहीं लेता, जब तक ये कलाम नहीं पढ़ता, दुआ नहीं करता, अपनी जिंदगी को रास्तबाज नहीं बनाता, दूसरे मज़हब की तरफ खुदा तक रसाई नहीं पा सकता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम में ये सारी चीजें जो भी पड़ी हैं, चूंकि कुर्बानी की शिक में आती हैं, तो चिड़चिड़ापन भी था, हम जो थे वो रूड भी थे, हम में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, बेयकीनी है, नाउमीदी है, बदगुमानी है, मगरूर हैं, धोखेबाज हैं, चोर हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं देखा। उसका जो पैमाना है, उसने जैसा भी तू है मैं तुझे कबूल करता हूं, ए मेरी दुल्हन, ए मेरी बेटी, ए मेरे बेटे, वापस आ जा, मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैं इस दुल्हन को छोड़ना नहीं चाहता, मैं इसको पाना चाहता हूं, ताकि इसके सारे काम जो निकम्मे हैं, जो अधूरे हैं, जो कलाम के मुताबिक, इंसानियत के मुताबिक ठीक नहीं है, इसको मैं जैसे का जैसा है वैसे का वैसा ही कबूल करता हूं। और अगर वो ऐसे कबूल करता है तो रिलेशनशिप हमेशा आपकी बनी रहेगी। जोरदार ताली बजाएं। तमाम कमियों के बावजूद उसने अपना खून बहाया है। हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं इंसानों में। कौन सा इंसान परफेक्ट है? इंसानों में परफेक्शन नहीं मिलेगी आपको। अगर आपको रियली खुश रखना चाहते हैं ना अपने आप को, डोंट वरी अबाउट उसने क्या कह दिया, उसने तो ये कर दिया। ये उस अर्ज का जो पेपर है ना, ये फाड़ दे। लव योर गॉड। फैमिली से मोहब्बत करें, मेहनत करें, इसलिए खुदा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। दूसरों के सिलसिलों में जाकर हम जो कुर्बानी है उसको भूल जाते हैं। और कुर्बानी के लिए मेरे अजीजों, ये जो मोहब्बत है, कुर्बानी का नाम है। मैं और आप अगर शादी में कुर्बानी नहीं कर सकते तो फिर ये शादी कामयाब नहीं हो सकती। 5वीं चाबी जो है वो है इनवाइट क्राइस्ट इन योर मैरिज लाइफ। अपनी जिंदगी में, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, इसमें यीशु मसीह को दावत दें। वो मेहंदियां देते शादियों पे तो हमने बहुत पैसे लगा दिए, पर जब आपने बीवी को घर में ले आए, अब कैसे चलना है?
वो मेहंदियां और शादियों पे लगाए हुए सारे के सारे पैसे गए, अगों फिर जोड़ना शुरू करो दूजे बच्चे की शादी में। इनवाइट क्राइस्ट इन योर मैरिज लाइफ। क्योंकि मत्ती 18:20 में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में हूं। For where 2 or 3 gather together in my name, I'm among them. मैं उनके बीच में हूं। मियां बीवी क्राइस्ट को बाहर रखकर मैरिज लाइफ को, फैमिली लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं। क्राइस्ट के बगैर नहीं हो सकता। ना बीवी परफेक्ट है, ना खामद परफेक्ट है। क्राइस्ट को लाना पड़ेगा, जिसने कहा कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। जब वो हमारी मैरिज का महवर होगा, हमारी मैरिज का सेंटर होगा, आपकी शादी कामयाब होगी। मैथ्यू 18:19 वर्ष में लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें। गौर से सुनिएगा, अगर मियां बीवी चाहते हैं ना कुछ करना, इनको क्राइस्ट बीच में लाना पड़ेगा। एक की ख्वाहिश है मेरे पास ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, दूसरे को कहता है कोई बात नहीं, हो ना हो, बड़ा फर्क पड़ता है। काम पे जाते हैं, रोटी मिल रही है, अमेरिका में रह रहे हैं, लेकिन अगर आप जो चाहते हैं कि आपको मिले, तो दोनों को इकट्ठा होना और उसमें क्राइस्ट को लाना बहुत जरूरी है। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। मेरी बहन, मेरे भाई, कई बार हम दूसरों से दुआएं करवाते हैं, दुआ करो जरा औलाद नहीं हो रही, दुआ करो जरा जाब का मसला रहता है, दुआ करो जरा, पर घरों ही लब लो साम, बीवी को उत्थे बैठी है या खामद होते ही उधर ही है, खामद उधर ही बीवी है, उसको कहें लेट्स प्रे फॉर दिस प्रॉब्लम के लिए हम दूसरों से दुआ कराते हैं। उनकी पता नहीं दुआ सुनी भी जानी है कि नहीं। घर में ढूंढे, अंदर है खुदा आपका, दिल में आने नहीं देते ना तमन्नाओं में। हम खुदा ढूंढने आ जाते हैं गिरजाओं में। गिरजे में खुदा नहीं बैठा हुआ, यहां हम फेलोशिप के लिए आते हैं। खुदा मेरे और आपके अंदर है, यहां से ढूंढे। और यह शादी जो है, इसमें अगर क्राइस्ट नहीं है आपकी शादी में, तो फिर भूल जाइएगा कि आप हर तरह की जो बरकत है उसको एंजॉय कर रहे हैं। वो जो चाहें उस पर इत्तेफाक करें, तो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। यूहन्ना 2 बाब 1, 3, 7, 9 और 10 आयत। फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई। यीशु मसीह के जो रिकॉर्डेड मिरेकल्स हैं, मुजज़े हैं यीशु मसीह के, वो 37 हैं बाइबल में। और काना गलील जो है, ये यरूशलेम से 6 मील दूर है, गांव है एक, और वहां पे शादी हुई थी। और बर्तमाई जो शागिर्द यीशु मसीह का था, जिसको अंग्रेजी में नथानिएल कहते हैं, ये वहां का था, काना गलील का। जो बर्तमाई नथानिएल यीशु मसीह का शागिर्द था, ये काना गलील से था। और काना गलील में शादी हुई, और यीशु और उसके शागिर्दों को भी शादी हुई, और यीशु की मां वहां थी। अब लगता है अगर यीशु मसीह की मां वहां है ऑलरेडी, तो ये कोई शादी रिश्तेदारों की लगती है। मां को जिसको बुलाया नहीं गया, शी इज ऑलरेडी देयर। तो यीशु मसीह की मां वहां थी, और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। Jesus and his disciples were also invited. Jesus and his disciple also invited. अगर शादी करनी है मेरे जो बुलाएं खुदा के खादमों को कि वो उस बेटी और बेटे पे हाथ रख के ये जो मेहंदी है उसमें मसा करें तेल के साथ उस जोड़े को,
ابھی ریسنٹلی ایک مہندی تھی تو میں نے گیت گا کے تھوڑا کلام میں شیئر کیا, تو ان کی مہندی سے پہلے تیل کے ساتھ میں نے بیٹی اور بیٹے کو انوائنٹ کیا, مسح کیا. اور یہاں پر بھی یہی ہوا ہے کہ جب شادی ہے کانا گلیل میں, اور کانا گلیل کے معنی کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ ہے ریڈ فائل. کیا مطلب ہے ریڈ فائل؟ کانا گلیل میں شادی ہوئی, ریڈ فائل. یہ میں اور آپ جب پیدا ہوئے ہیں نا, تو ہماری فائل کے پہلے ہی سے ہماری پیرنٹس نے جو کچھ ہمارے جیسے تربیت کی ہے وہ ہے فائل. اور اس کے بعد جب ہم نے بڑے ہوئے ہیں تو کیسے ڈیسیژن زندگی میں لیے ہیں وہ ہے فائل, ریڈ فائل. سو فائل جو ہم ریڈ کرنی ہے ساری عمر, میاں کی اور بیوی کی, یہ کانا گلیل کی شادی ہے. یسوع مسیح کا پہلا موضع ہے, اور شادی جس خدا نے پہلے مقرر کی تھی آسمانوں پر. ریڈ فائل. یسوع کی ماں وہاں تھی, اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی, when the wine ran out, جب میں ایکچولی ختم ہو چکی, تو یسوع کی ماں نے اسے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. 7ویں آیت, تھوڑی آیتیں میں سکپ کروں گا. یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو. بس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. شادی میں کرائسٹ کو لانا بہت ضرور ہے, اور مٹکے مٹی کے ہوتے ہیں, انسان مٹی سے بنایا گیا ہے, اور اس میں پانی بھر دو, اس پانی کی بات ہے. اگر میاں میں بیوی میں یہ بستا ہے نا, شادی نہیں ٹوٹ سکتی. مٹکوں میں پانی بھر دو, کلام زندگیوں میں بھر دو. اور کیا ہوا جب میرے مجلس 9 ورس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا, اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. did not know where it come from. یہ جو سارا ارینج میرے مجلس, جس نے سارا کھانے پینے کا ارینجمنٹ جس کے کنٹرول میں تھا, جب اس کو بلایا گیا ہے تو لکھا ہے کیا, اس نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. اسی تے پکوڑے سموسے آرڈر کیتے سن, تے بوندی والے لڈو کتوں آ گئے نے وچ. وہ خود حیران رہ رہا ہے کہ میں نے یہ آرڈر ہی نہیں کی تو کہاں سے آئی ہے. اور اگلی آیت سنیے, تو میرے مجلس نے کیا کیا, دلہا کو بلا کر اس سے کہا, دلہا کو, کرائسٹ کو. ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے, اور ناقص اس کے بعد جب پی کر چھک گئے. ہر شخص ہوئے جو رشتہ ہون لگے تو جناب ٹیبل پر دیتے نے کھانے دا, ادھر بیٹھے جی آپ, بڑی عزت رسپیکٹ, یہ سارا کچھ. بعد میں کیا ہوتا ہے, پہلے اچھی میں پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر کوئی ایکسٹرا آرڈنری کر رہا ہے that person is fake. ریالٹی کے ساتھ جو ہے کرے. اچھی میں پہلے پیش کرتے ہیں, اچھے ریلیشن, اچھی گفتگو, اچھا سارا کچھ. اور پھر جب, اور ناقص اس وقت جب پی کر چھکو گے, جب ڈرنک ہو جاتے ہیں. چوائس وائن فرسٹ چوائس, یہ ہونا چاہیے, اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے, یہ گاڑی ہونی چاہیے. ابھی میں کسی کو بتا رہا تھا, چونکہ میرا والد بزرگ ہے, 3 نرسز آتی ہیں. ایک نرس کالی ہے, آپ غور سنیں گے یہ ملک کی سوچ کیسی ہے. ایک نرس کالی ہے جو آتی ہے ان کو شاور دینے کے لیے, اور اس کے پاس SUV ہے آؤڈی کی, آ کر ڈائپر چینج کرتی ہے, شاور دیتی ہے, آؤڈی پہ آتی ہے. سوچ کا خیال کیجئے گا. ہم سوچتے ہیں جو غریب ہیں, غربا ہیں, یہ یہی ڈیزرو کرتے ہیں. نو 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 نو, ناٹ ان دس کنٹری. چاہے بہت کچھ چینج ہو گیا اس ملک میں, اس کے جو سارے رول ریگولیشن ہیں وہ کلام مقدس میں سے لے کر بنائے گئے ہیں. کلام کے رول ہیں, چاہے ان کو وہ دوسرے سمجھیں. یہ فرق کیوں ہے؟ کیونکہ اس پہ بنائے گئے ہیں. چونکہ اس پہ بنائے گئے ہیں اس لیے یہاں پہ فرق ہے.
मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। काना गलील की शादी में क्या हुआ जी? यीशु को बुलाया गया। शादी में इनवाइट क्राइस्ट। जरा सोचिएगा मेरी बहन, कब आपने घर में दुआ की है? मेरे भाई कब की है? कब फैमिली प्रेयर हुई है? कितनी देर आप दुआ करते हैं? कितनी देर कलाम पढ़ते हैं? क्राइस्ट को इनवाइट किया है या नहीं? अगर मैं और आप बगैर क्राइस्ट को इनवाइट किए एक क्रिश्चियन मैरिज जो है उसको बहुत खूबसूरत देखना चाहते हैं, क्राइस्ट के बगैर कभी नहीं हो सकेगी। क्योंकि फिर हम इंसानी हिकमत से करेंगे और इंसानी हिकमत फेल है, और जहां पे इंसानी हिकमत फेल हो जाती है, खुदा की कुदरत वहां से शुरू होती है जिसकी समझ से बाहर है। और काना गलील में शादी हुई और उन्होंने क्या किया जी? यीशु को बुलाया है। मैं और आप अगर यीशु को अपना सेंटर बनाते हैं मैरिज लाइफ में तो शादी कामयाब होगी। और फिर 6 मटके हैं और वो लिखा है सेरेमनियल तहारत के लिए थे। एक्चुअली वो मटके जिनमें पानी भराया है वो मैं वाले तो बर्तन नहीं थे। जिन बर्तनों में मैं थी वो मैं खत्म हो गई। जिस दिन निकाह हुआ, पहले की बातें मियां बीवी के लिए गॉन। इनवाइट क्राइस्ट दैट डे। जब आपकी शादी हुई है यीशु मसीह को दावत दीजिएगा। और ये मटके हैं, उनको कहा लबालब भर दो, रीड द बाइबल। और उसके बाद जब लबालब भर दिया तो यही पानी जो तहारत के लिए, हाथ पांव धोने के लिए ये मटके जो थे उसी को गया है मैं बदल दिया। और यीशु मसीह का ये पहला मौजज़ा काना गलील में हुआ जिसमें लिखा है उसके बाद उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। मेरी और आपकी जिंदगी में अगर शादी के बाद तंगी आ गई है, तकलीफ आ गई है, मुसीबत है, लड़ाई है, झगड़ा है, आंधी है, तूफान है और गुर्बत है, कुछ सारा कुछ हाथ से जाता नजर आ रहा है, बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, ड्रग में जा रहे हैं, बैड फ्रेंडशिप है, मेरी बहन मेरे भाई यीशु मसीह को अपनी शादी का महवर बनाइएगा, सेंटर बनाइएगा। जब यीशु वहां पे होगा तो वो बदमजा जिंदगी जो खराब हो चुकी है, एक्सपेक्टेशन आपकी अगर अधूरी जा चुकी है, जब यीशु उस शादी में आ जाएगा तो वही मटके जिनमें पानी है वो इस कदर अच्छी में बन देगी। हर शख्स आपको एक मिसाली खामद, एक मिसाली वाइफ समझेगा, क्योंकि यीशु मसीह की इनविटेशन शादी में होना जरूर है। अगर मैं और आप आज तक अपनी शादी को सिर्फ धक्का लगा रहे हैं क्योंकि ये खुदा की तरफ से हुई है, लेकिन अगर क्राइस्ट आपकी शादी में नहीं है तो मेरे अजीजों ये शादी कहीं तक पहुंचने वाली नहीं है। उम्र गुजर जाएगी लेकिन शादी बदमजा रहेगी। इस मजे को चेंज करना है तो मुझे और आपको क्राइस्ट को शादी में लाना बहुत जरूरी है। प्रेज हिम। 5 चाबियां। गिव 100%। बीवी से, खामद से जो भी बेस्ट होता है हो सकता है अपनी तरफ से करें। रिस्पेक्ट योर स्पाउस। खामद की बीवी की इज्जत कीजिएगा, आपके हालात चेंज हो जाएंगे। लिव एग्जाम्पलरी लाइफ, एक नमूना बना के रखें। नहीं, ये झगड़ा नहीं करना, ये प्रॉब्लम नहीं करनी, नमूने के लिए गलत है। आप एक नमूना मिसाली जिंदगी गुजारेंगे। सैक्रिफाइस इन योर मैरिज लाइफ, अपनी मैरिज लाइफ में कुर्बानी करना सीखिएगा। अभी मैं यस्टरडे लॉन्ड्री पे गया, अशर भाई वहां पे थे, ये इरमबाजी ये नहीं करे तो भाई साहब तुसी किथे हो? मैं जी कपड़े लैन आया वहां। तुसी भी कपड़े धोंदे हो? मैं जी शादी की थी। दैट वाज द वर्ड आई यूज। तुसी भी कपड़े धोंदे हो? मैं जी शादी की थी। तो वो कपड़े एक्चुअली मैं अपने पेरेंट्स के जो हैं, चूंकि हमने नीचे भी डन किया है पीछे भी, तो कपड़े हम बाहर लॉन्ड्री में ही धोते हैं।
लेकिन जो पेरेंट्स के कपड़े हैं वो मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैंने उनको धोना है, और मैं हर वीक उनके कपड़े लॉन्ड्री में धोकर तय करके उनके कमरे में रखता हूँ। तो इसमें सैक्रिफाइस करना बहुत ज़रूरी है। और इन दी एंड इनवाइट क्राइस्ट इन योर मैरिज। अगर खुदा यीशु मसीह को आप अपनी शादी में, हर बात में, रोज़ घर में इनवाइट करते हैं, कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ज़िंदगी स्मूथ खुशहाल रहेगी। आपको मन ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मन खुद आपके आगे आ जाएगा। मे गॉड bless your marriages. Thank you.